regarding Bihar election, I am very clear that now the days have gone when there used to be so much frauds in our elections. But now the elections held in Bihar, I think, are very clear and very fair elections. Sir, Yes. how is the candidate in nature? Means by character who has been selected by the citizens. There are different types of people. Some are very nice, some are not nice. So, because the form of our politics is not fair these days. But I am very happy that the leader of this country, you know who is the leader of this country? Who, Anjali? Narendra Modi. Very good. Nice answer. So that person is very honest, and I think that he has changed a lot of things in our country. And gradually, he is moving towards the towards more improvement in our country. And fair election is one of them. So, my dear friends, you are Sir, most welcome. Yes, sir, what are your opinions about the Red Fort bomb blast? that was an act of terrorists. Sir, but where they are from Terrorists India? were highly qualified. Most of the terrorists were doctors. So that was not good for our country. And I think strict actions must be taken against such type of activities. And the action must be so strict that the other people who have any ideas in their minds to carry such things out again, they Sir, should have a fear in their mind that if they do such types of activities, if they commit or if they make such types of activities, they would definitely be punished. Yes. sir, there was about 3000 KD RDX was found Yes. in Delhi. Yes, you are right. Yes, you are RDX, sir, right. And sir, sir, if our forces if our forces were not able to recognize that thing or to identify that thing or to have an idea regarding such things, there would be a great destruction in our country. But I'm very much thankful of our forces, our police, our forces, our intelligence departments that they detected it, and now we are safe. Yes, sir, sir. Our Indian spy team has already arrested many terrorists before the bomb blast. Yes, you are right. So Sir, do you know Dhruv Rathi? Yes. I have heard the name of Dhruv Rathi, but I want to know from you about him. I sir, was Sir, he is a popular YouTuber who tells about politics and about adventures and about the people who have survived from many hardships and are emerging. He talks about the issues of the country and what need to be done in our country to make it developed from developing. sir. He exposed Godi media. Yes, you are right. sir, he is completely against to go the media. Sir, he is concerned about the country Very good, very good. Nice interaction. Keep it and up. explains what are the ways by which And we others, can others develop a also must country. take part in it. This is a part of today's class. And sir, he also launched many programs and many workshops for people's development. And recently, he launched his own AI Fiesta, which is a very good AI platform where we can combine, where we can get all the AI
platforms data with one single click. And also you talk about the politics of India and also the all the events that happened in India, like some disaster, or like I would take an example of his latest video about Delhi Delhi blast. Carry on. Yes, sir. So he talked about the explosion and why it happened and who could be reasonable to point out, and also some other events like the uh, raid in Faridabad and findings of many guns and other weapons from terrorist groups, and talking about theories. Sir, Dhruv Rathi, before he lives in Germany now, but in past he lived in India. And sir, his For thoughts studies, about the for true many story. reasons, he shifted to Germany. इंटरेक्शन करो, बाकी के लोग Excuse me, बाकी के sir. लोग क्या कर रहे हैं बैठे बैठे, कोई आवाज नहीं आ रही कुछ 4-5 लोगों के अलावा. And sir, he tells Excuse me, his sir. thought story Okay, which now. are Okay, now get ready for listening. Sir, one last question, sir. हाँ, बहुत अच्छा रहा आज आपका जो इंटरेक्शन किया आपने. That was the type of discussion that you did here, and I am very happy, Sir, and I praise those who took part in this interaction, and it was about 7 or 8 minutes interaction, and I would like that all the other people would also take part in such types of debates whenever there is any opportunity. So now I am sir, telling you something and you have to listen it, and if you like you can write down the notes. Now focus on listening. Today we had an interaction session that was about 8 minutes that has been ended, and now you have a listening session. So be careful and listen to me attentively, and so that you can be able to speak upon the topic, or you can be sorry you can you may be you may answer the questions that I'll ask you after telling you the thing. So I think you are ready for it. Improve your listening, and today what I am telling you must be there in your mind at the time of my interaction. So it is necessary for us to go anywhere anytime, and you also go. So we all travel. Now listen, focus on listening. We all travel by public transport, train or bus, and have had many bitter and sad experiences. कैमरा किसी का भी बंद नहीं रहेगा, एक का भी बंद नहीं रहेगा, और सबकी शक्ल दिखेगी. मेरे को ये छत और पंखे नहीं दिखने चाहिए. पूरी शक्ल दिखाओ अपनी, बिल्कुल फुल. छत और पंखे दिखने का मतलब आप नहीं है वहां पर मौजूद. जैसे मैं दिख रहा हूं आपको, पूरा पूरा ऐसे दिखो आप. अभी मैं इसको ऐसे कर दूं तो आप बताओ. अब बताओ. सर सर आपका सिर दिख रहा है सर पूरा. सर इसको नीचे ही कर लो. नहीं तो कर लो, तुम भी कर लो ना. तुम्हारा जब काली नाक, कान, आंख, बाल दिखाई देता है, तुम्हारे पंखे दिखाई देते, तो मेरे को भी तकलीफ होती है ना. मेरी तकलीफ को भी तो ध्यान रखो. पूरे दिखो विपिन, थोड़ा सा सही करो. घुस जाते हैं मोबाइल में. सामने बैठो ऐसे. यस. सो वी ऑल ट्रेवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ट्रेन और बस, and have had many bitter, focus करो listening पे, bitter and sad experiences. Orderly queue system at the time of either purchasing the tickets or boarding the train or bus is rarely followed. बहुत सिंपल सी इंग्लिश है. लिखो, वर्ड्स लिखो जो समझ में नहीं आ रहे हैं. दोबारा पढ़ूंगा जब समझने की कोशिश करना. अभी भी समझो. Everyone in his self interest flouts
the genuine rights of others. Those who are already occupying a seat would very reluctantly, words को सुनो आप ध्यान से, reluctantly permit others to sit even on the neighboring vacant seat. और सिंपल सी बातें हैं, आप भी फील करते होंगे कभी कभी ऐसा. When they do so, they grab about half of that vacant seat also. The thought of giving help to other needy ones rarely, this is not really, rarely stirs them. Some people are fond of chewing beetles and tobacco. They spit and spit frequently all around, showing no respect for public property. They forget that they have paid for journey and not for spoiling the train or bus. They throw all rubbish and leftovers wherever they so desire. Our public transport, our roads and streets, our public places and buildings are seen littered. फोकस करो, नए नए वर्ड्स आएंगे. littered जैसे भी हो लिख लिया करो, अगर मीनिंग नहीं पता है तो कैसे भी लिख लो. littered with all sorts of stinking refuse that tells upon our health and vigor. In spite of the statutory warning that smoking is injurious to health, we do not notice any slump in the sale of cigarettes or BDs. The pity is the smokers, in their own enjoyment, do not think of the people around them. Sometimes the surroundings become unfit for breathing. Passive smoking causes more harm. This is the end. अब आप पूछ लो कुछ मीनिंग्स वगैरह पूछने हो तो सेकंड राउंड की मैं लिसनिंग चालू करूंगा. मैं पूछ लो फटाफट से, कुछ पूछना है तो. डांट पड़ेगी बहुत जोर से, अगर ध्यान नहीं दिया तो भगा दूंगा यहाँ से निकाल करके. मैं समझ लेना. फोकस नहीं है तो क्लास छोड़ देना मेरी. मन लगा के बैठना है यहाँ पे, नहीं बहुत जोर से डांटूंगा और भगा दूंगा क्लास में से भी. ईच एंड एवरी स्टूडेंट, मुझे नहीं पता है, आप पूछ लो. मीनिंग टाइम दे रहा हूँ पूरा पूरा आपको मैं. फोकस होकर बैठ जाओ, कॉपी पेन लेके पूछो फटाफट से. Sir, with meaning of reluctantly. रिलक्टेंटली का मतलब बिना मन से, विदाउट एनी विश, बिना इच्छा के. होता ना कई बार जबरदस्ती काम करना पड़ता है, अपने को मन नहीं होता तो भी, तो रिलक्टेंटली. और बोलो. और sir, littered. लिटर्ड का मतलब भरा हुआ होना. लिटर्ड सेकंड फॉर्म है, भरा हुआ होना. LITTER, लिटर. नए नए मीनिंग आएंगे, पूछूंगा मैं तुम लोगों से मीनिंग. अभी यहाँ टाइम पास करने के लिए बैठे हो तो क्लास छोड़ के चले जाना. अभी अटेंडेंस भी नहीं लिया मैंने. फोकस करके बैठे. हाँ, Slump. स्लम्प का मतलब होता है कमी. SLUMP, स्लम्प, कमी. लिख लेना है मीनिंग. जो भी बोल रहा हूँ मेरे को याद है कौन कौन से बोल रहा हूँ, पूछूंगा मैं भी. एक एक जना बोलो. सेल्फ इंटरेस्ट का मतलब के लिए, खुद के मतलब के लिए, खुद के स्वार्थ के लिए, खुद के फायदे के लिए. बताया मैंने सबसे पहले, अब नहीं बताऊंगा. बताया मैंने सबसे पहले रिलक्टेंटली का मतलब. अब नहीं बताऊंगा, फोकस करो. सर स्ट्रेंगिंग. स्टैंडिंग नहीं है, कुछ और है.
इसीलिए तो कहता हूँ साउंड पे फोकस किया करो, अपने आप आ जाएगी स्पेलिंग। स्टिंगिंग है कुछ ऐसा। स्टिंकिंग लिख लो, स्टिंकिंग। साउंड पे फोकस करो, स्पेलिंग अपने आप आ जाएगी। स्टिंकिंग, STINKING, साउंड पे फोकस करो। स्टिंकिंग, बदबूदार, बदबू देने वाला। आती है ना, गंदगी पड़ी रहती है वहां पर, बदबू आती रहती है, दैट इज स्टिंकिंग। एक मीनिंग दोबारा नहीं बताऊंगा, सब सुन लेना एक बार में ही। और पूछो। Sir, occupying. ऑक्यूपाइड का मतलब ले लेना, ग्रहण कर लेना। और बोलो, लिख लो सारे के सारे जो भी मीनिंग आ रहे हैं कॉपी के अंदर। हो गया? आ जाओ, अब मैं दोबारा रीडिंग कर रहा हूं, सुनिए ध्यान से जरा। कैमरे चालू रखो अपने अपने। वी ऑल ट्रेवल, अब आ जाना फटाफट से, कोई भी रह गया हो तो अब हाथों हाथ पूछ लेना, बीच बीच में ही नहीं समझ में आया तो। वी ऑल ट्रेवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ट्रेन और बस। अब ये समझा भी करो कहां सेंटेंस खत्म हो रहा है, कहां शुरू हो रहा है, फोकस करो चीजों पे। एंड हैव हैड मैनी बिटर, बिटर कड़वा, एंड सैड एक्सपीरियंसेस, BITTER, बिटर यानी कड़वा। ऑर्डरली क्यू सिस्टम, आप कहीं भी जाते हो तो लाइन लगी हुई मिलती है ना आपको, लाइन में लगना पड़ता है ना आपको। ऑर्डरली क्यू सिस्टम at the time of either purchasing the tickets or boarding the train or bus is rarely followed. सर बोर्डिंग मतलब? बोर्डिंग का मतलब चढ़ना। ओके सर। हाँ, रेयरली का मतलब दुर्लभतम, मुश्किल से ही। फॉलोड का मतलब अनुकरण किया जाना, पालन किया जाना। एवरीवन इन हिज सेल्फ इंटरेस्ट फ्लाउट्स, साउंड को पकड़ोगे तो स्पेलिंग अपने आप लिख दोगे आप। फ्लाउट्स, फ्लाउट्स का मतलब उल्लंघन करना, तोड़ देना, ध्यान नहीं रखना। फ्लाउट्स द जेन्युइन राइट्स ऑफ अदर्स। तो जेन्युइन मतलब? जेन्युइन मतलब उचित, जो मिलना चाहिए अपने को, सही, न्यायोचित। दोस who are already occupying a seat would very reluctantly permit others to sit even on the neighboring vacant seat. सर वेकेंट मतलब? खाली। कभी देखा है बस में आप गए होंगे तो एक बैठा हुआ होगा, एक सीट खाली होगी, उस पे भी आधा पसरा हुआ पड़ा रहता है वो, और उस पे भी बैठने देगा तो बड़ी मुश्किल से, इच्छा ही नहीं होती कि दूसरा बैठ जाए यहाँ पे, उसका तो खाली रहे बस। When they do so, they grab, मैंने कहा ना पसरा रहता है, पड़ा रहता है, they grab about half of that vacant seat also. आपने बहुत जनरली देखे होंगे इस तरीके के सीन। तो नई चीज नहीं आ रही है, फोकस करोगे तो समझ में आएगा, नहीं डांट खाओगे बुरी तरीके से अभी मेरे से आप। नहीं तो छुट्टी कर लेना आज की, कल आओगे जब बात करूंगा फिर मैं। फोकस कर लो, फोकस। The thought of giving help to other needy ones rarely stirs them, यानी कि उनको विचलित करना। स्थिर का मतलब उनके मन को हिलाना, मतलब कि किसी की हेल्प करने की विचार तो, किसी दूसरे जरूरतमंद व्यक्ति की हेल्प करने का मन, विचार तो उनके मन में बहुत मुश्किल से ही कभी आता है, आता ही नहीं है, उनका मन कभी हिलता ही नहीं है इस चीज के लिए, इसी की हेल्प भी करते हैं। सर रियली क्या, आगे एक बार वापस बोलना। स्टेट्स, STIRS, स्टेट्स का मतलब हिला देना, उनको एक तरीके से जागृत कर देना, एक तरीके से उसके मन में ऐसी भावना आना, है ना। दया, जैसे कहते हैं यार तुमको इसको देख के भी दया नहीं आ रही कि यार वो इतना, तुम्हारे पास सीट खाली पड़ी, थोड़ी हेल्प कर दो इसकी, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मतलब लाइक दैट, ऐसे समझ लो। सम पीपल आर फॉन्ड, फाउंड में नहीं है, फॉन्ड, FOND, सम पीपल आर फॉन्ड ऑफ च्यूइंग,
च्यूइंग लिख दोगे स्पेलिंग अगर फोकस करोगे तो, CHEWING, च्यूइंग का मतलब चबाना. Some people are fond of chewing beetles. beetles का मतलब होता है सुपारी, BETELS, beetles, with tobacco. tobacco तंबाकू होता है ना, कुछ लोग तंबाकू खाने के शौकीन होते हैं. They spit and spit. spit का मतलब थूकना. Sir, SPIT, spit. spit का मतलब थूकना. They spit and spit frequently, बार बार, लगातार, frequently, all around, showing no respect for public property. They forget. sir. हाँ बोलो, Yes, बोलो. sir. Sir, बीटर क्या होता है? बीटल मतलब सुपारी टाइप जैसी चीज नहीं आती है, सुपारी मान लो. पास सर, बीटर तो कीड़ा होता है ना? वो भी होता है, ये भी होता है. ठीक है. अच्छा. अब उसको कीड़े को थोड़ी चबाएंगे. बहुत देखो लोग सर. पान खाने वाले होते हैं, गुटखा खाने वाले होते हैं, उनकी बात की जा रही है. सर मामा. चुप रहे, अब पढ़ाने दे मेरे को. सर 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 ये सर एक्सपोज कर रहे सर ये हैं बी सर बी से स्टार्ट होता है, बी से स्टार्ट होता है ये. बी से. बी. हाँ बीटल. एक मिनट रुक जाओ, तुमने मेरे को कर दिया है तो मुझे अब अंदर जाना पड़ेगा थोड़ा सा. ठीक है ना. सर. आप तो यहाँ पे ही हो. अरे देखते हैं, अपन यहाँ पे है नहीं, अपन कहीं पे भी. भैया भैया मेरे. चले चले मेरे भाई. रुक जा एक मिनट, चलेंगे. बाय बाय. वो बीटल कुछ दूसरा होता होगा फिर यार, और देखना पड़ेगा. चलो फिर देखेंगे. ये बीटल तो ये है, यहाँ पर सुपारी वगैरह ऐसी चीज है ना. आ जाओ. दे फॉरगेट, उच्चारणों पे ध्यान दो. दे फॉरगेट दैट दे हैव पेड. टेंसेस पे फोकस करो, वर्ब पे फोकस करो, मीनिंग्स पे फोकस करो. बिना लिसनिंग के कुछ नहीं है. They forget that they have paid for journey and not for spoiling. Spoiling, बर्बाद करना. The train or bus. खराब करना, बर्बाद करना, spoiling. They throw all rubbish. Rubbish, RUBBISH, कूड़ा, कचरा. And leftovers. Leftovers सिंपल है, लिख दोगे स्पेलिंग, पकड़ा साउंड को. लेफ्ट ओवर्स एक साथ है, LEFTOVERS, बचा कुचा, बचा हुआ. वेयर एवर, जहां कहीं भी. दे सो डिजायर. डिजायर का मतलब इच्छा होना. दे सो विश भी कर सकते हैं अपन यहाँ पर डिजायर की जगह. आवर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, आवर रोड्स एंड स्ट्रीट्स, our public places and buildings are seen, passive voice, littered, भरी हुई, with all sorts, SORTS, प्रकार, all sorts of stinking, STINKING, बदबूदार, stinking refuse, REFUSE, refuse that tells upon. फ्रेजल वर्ब है, लिख लो इसका मीनिंग. टेल्स अपॉन का मतलब बुरा प्रभाव डालना. टेल्स और फिर अपॉन, फ्रेजल वर्ब है. आवर हेल्थ एंड विगोर. विगोर का मतलब होता है हमारा साहस, हमारा जोश, हमारा उत्साह, हमारी जीवन शक्ति, लाइक दैट. इन स्पाइट ऑफ पूरा एडवर्ब है, फ्रेज है ये. बावजूद, इन स्पाइट ऑफ, तीन वर्ड है अलग अलग. इन स्पाइट ऑफ, बावजूद.
इन स्पाइट ऑफ द स्टैच्यूरी वार्निंग, स्टैच्यूरी का मतलब होता है संवैधानिक, वैधानिक, सॉरी, कानूनी, वैधानिक, चेतावनी, वार्निंग। क्या चेतावनी होती है? स्मोकिंग इज इंजरियस, इंजरियस का मतलब नुकसानदायक, हार्मफुल टू हेल्थ। वी डू नॉट नोटिस एनी स्लम्प, स्लम्प, SLUMP, साउंड को पकड़ो, एनी स्लम्प इन द, स्लम्प का मतलब कमी, गिरावट, ऑफ द सेल ऑफ सिगरेट्स और बीडीज। द पिटी, पिटी का मतलब करुणाजनक बात, खेद की बात, दुख की बात, ये है क्या है? द स्मोकर्स इन देयर ओन एंजॉयमेंट डू नॉट थिंक ऑफ द पीपल अराउंड देम। बहुत सिंपल सी है इंग्लिश। समटाइम्स सर हाँ, सर स्लम्स तो वो भी तो होता है, मतलब जहाँ पे गरीब अब झोपड़ा लगाते हैं। क्या सर मतलब स्लम्स। वो अलग चीज होती है, वो होता है, वो स्लम्प नहीं होता, वो होता है, तो स्लम। स्लम होता है वो, SLUM, स्लम। अच्छा, ये स्लम मतलब नहीं, इसमें पी लग गया। स्लम्प। हाँ बस पी आ गया इसके। अच्छा, समटाइम्स द सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स का मतलब चारों तरफ का माहौल, चारों तरफ का वातावरण, बिकम अनफिट फॉर ब्रीदिंग। पैसिव स्मोकिंग कॉजेज मोर हार्म। पैसिव स्मोकिंग क्या होती है? कोई हमारे सामने बैठा हुआ है, स्मोकिंग कर रहा है, धुआं छोड़ रहा है, और वो धुआं हमारे अंदर जा रहा है, तो एक तरीके से हम भी स्मोकिंग कर रहे हैं, वो पैसिव स्मोकिंग हो गई। वो तो एक्टिव कर रहा है, पी रहा है, लेकिन वो धुआं उसके यहाँ से निकल करके हमारे अंदर आ रहा है, तो वो पैसिव स्मोकिंग हो गई एक तरीके से। सर सस्ते नशे हो गए। हाँ, सस्ता और महंगा तो खैर एक अलग बात है। हो गया क्लियर? कोई डाउट? पूछ लो, अभी पूछ लो, आप पूछ लो फटाफट से। सर वैधानिक चेतावनी की वो बताना मतलब मीनिंग। स्टैच्यूरी वार्निंग, STATUTORY, स्टैच्यूरी। और बोलो। सर ये विगोर वाला सेंटेंस था ना, रिपीट कर दो। Our public transport, our roads and streets, our public places and buildings are seen littered. Littered यहाँ पर एडजेक्टिव है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। With all sorts of stinking refuse that tells upon our health and vigor. मैंने अब आपको मीनिंग भी लिखवा दिए। अब भी कुछ पूछना है तो पूछ लो, अब आ जाओ बेटा। सर ये यहाँ पे सर विथ ऑल शॉर्ट था ना, वो उसका मतलब ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्टिंकिंग, स्टिंकिंग भी यहाँ पर एडजेक्टिव है, बदबूदार। यस सर। स्टिंकिंग वर्ब भी होती है स्टिंक, लेकिन यहाँ पर एडजेक्टिव है ये, बदबूदार। जैसे वो लिटर्ड थर्ड फॉर्म आई थी नॉन फाइनाइट एडजेक्टिव की तरह, यहाँ पर ये ING वाली फॉर्म एडजेक्टिव की तरह काम कर रही है। फोकस कर लो, बच्चों के लिए नहीं है क्लास, मंद बुद्धियों के लिए नहीं है क्लास। हाँ सर BT 1 से आया था, हैं? 1 BT 1 से आया था ना। कहाँ? वो पसरा हुआ था, उसके आगे थी लाइन, ग्रैब है वो तो। उसके आगे थी, आया था ये शब्द। क्या आया था? पिटी। BT 1 मत बोलो बीच में, 1 मिनट। चलिए, मैं थर्ड टाइम पढ़ रहा हूँ इसको, अब इसके बाद नहीं पढ़ूंगा मैं इसको। जो पूछना हो पूछ लेना आप बस, मैं पूछूंगा इसके बाद, ध्यान रख लेना। हाँ बोलो। सर जो अभी आपने स्टिंकिंग बोला, वो पार्टिसिपल वाला एडजेक्टिव है ना? पार्टिसिपल, यू आर राइट।
जो सुनो मेरी बात ध्यान से, जो आईएनजी लगा करके एडजेक्टिव का काम कर रहा है दैट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल, और जब थर्ड फॉर्म मेन वर्ब की आ रही है एडजेक्टिव के रूप में दैट इज पास्ट पार्टिसिपल। और कोई बात? और सर परफेक्ट पार्टिसिपल वो तो हैव लगा करके, और नहीं वो कम यूज होता है, वो नहीं आता। हैव बीन लगा, हैव लगा करके, हैव बीन लगा करके यूज होता है वो। ओके सर। हाँ, यूज नहीं होता है वो, बहुत कम यूज होता है वो। पहले इसको अच्छे से समझ लोगे तो वो फिर अपने आप यूज होने लग जाएगा। अब मैं फिर से पढ़ रहा हूँ एक बार, इसके बाद मैं पूछूंगा, पूछना हो तो पूछ लेना, अभी नहीं डांट खाओगे। अब मैं पूछूंगा इसके बाद आपसे एक एक चीजें, मैंने बहुत 2 बार सुना दिया, तीसरी बार सुना रहा हूँ मैं। फिर भी कोई मीनिंग का इश्यू हो तो पूछ लेना मेरे से, रुक के, बीच में रोक के। उसके बाद मैं पूछूंगा आपसे, नहीं भगा दूंगा, अभी क्लास में से निकालूंगा मैं 2-4 को, देख लेना, फोटो मंगवाऊंगा तुम्हारे, क्या लिखा है तुमने। अलर्ट हो जाओ और कैमरे चालू रखो सब अपने अपने। वी ऑल ट्रेवल by public transport, train or bus, and have had many bitter and sad experiences. Orderly queue system at the time of either purchasing the tickets or boarding the train or bus is rarely followed. Everyone in his self-interest flouts the genuine rights of others. Those who are already occupying a seat would very reluctantly, adverb by reluctantly, permit others to sit even on the neighboring vacant seat. When they do not, when they do so, they grab का मतलब कब्जा कर लेना, grab about half of that vacant seat also. The thought of giving help to other needy ones, जरूरतमंद, सर नीडी needy ones, जरूरतमंदों को, rarely stares them. Some people are fond of chewing beetles with tobacco. They spit and spit frequently all around, showing no respect for public property. They forget that they have paid for journey and not for spoiling the train or bus. They throw all rubbish and leftovers wherever they so desire. Our public transport, our roads, our streets, our public places and buildings are seen littered with all sorts of stinking refuse that tells upon our health and vigor. सर सर विगोर क्या होता है? और का मतलब भी हमारा स्वास्थ्य से रिलेटेड ही होता है ये, समझ गए ना आप? और सर स्टेट हैं? स्टेट स्थिर का मतलब हिला देना, झकझोर देना, हमें जागृत कर देना, हमें कुछ महसूस करवाना, समझ रहे ना? STIR, स्थिर। They throw all rubbish and leftovers where they so desire. Our public transport, our roads and streets, our public places and buildings are seen littered with all sorts of stinking refuse that tells upon our health and vigor. In spite of statutory warning, smoking is injurious to health. We do not notice an Islam in the sale of cigarettes or BDs. The pity is, दुख की बात ये है, दया की बात ये है, करुणाजनक स्थिति ये है, the smokers in their own enjoyment do not think of the people around them. Sometimes the surroundings become unfit for breathing.
passive smoking causes more harm. That is the end. अभी मैं टाइम दे रहा हूँ, पूछ लो किसी को पूछना, मैं पूछूंगा मीनिंग्स पूछूंगा, मैं कुछ और चीजें पूछूंगा, मैं पूछूंगा अब सर रिलेटेंटली रिलक्टेंटली, बिना इच्छा के, बिना मन के। कैमरे चालू रखो अपने अपने। सर ये स्ट्रक्चरल वार्निंग मतलब? वैधानिक चेतावनी, कानूनी चेतावनी। ओके सर। Okay, first of all, I am asking the meanings. कैमरे चालू रखो अपने अपने। अरे आप कैमरे चालू रखो अपने अपने। बिना मैं एब्सेंट लगा दूंगा जिसका कैमरा बंद हुआ, समझ लेना पहले अच्छे से। कैमरे चालू रखो अपने अपने साहब। Now I want to ask you some meanings. Get ready for it. मुझे नहीं पता आपने लिखे हैं नहीं लिखे हैं, क्या नहीं है। लिखे हैं तो कॉपी में देख के बोल देना, टाइम नहीं दूंगा बिल्कुल भी। What is the meaning of public transport? वैष्णवी। So public transport means the person travels in a any vehicle. Transport means not any person. Public transport means any means of transportation that Any means carry of us from one transportation. place to another, like bus, Like train. bus, That is called train. public transport. Okay. Yes, sir. What is the synonym of traveling? Travel. कोमल, कोमल कैमरा चालू रखो अपना। विपिन, tell me the synonym of travel. कोमल नहीं है। विपिन, विपिन भी नहीं है। आदित्य। सर आई एम हियर, बट सर मैं कैमरा ओपन नहीं कर सकती, क्लास कट हो जाती है अपने आप। जवाब तो दे दे, मैं तेरे से जब 2 बार पूछ लिया तो मैंने। सर आपने साथ में विपिन का भी नाम बोला था तो मैं मैंने इसलिए कंफ्यूज बाद हो में गई। बोला विपिन का, तो तेरा नाम लिया है पहले 2 बार तो मैंने। अब बता फटाफट से। व्हाट इज द सिमिलर ऑफ ट्रेवल? सर ट्रांसपोर्ट। नाउ जरूरी नहीं है इस पैसेज में ही हो, अब आपका आईक्यू है ये। ट्रैवल और ट्रैवलिंग। विपिन नॉट हियर। आदित्य, कैमरे में सब देखो मेरे को, आप कैमरा चालू करके, मैं नाम नहीं लूंगा उसका। आदित्य है ही नहीं यहाँ पे। रोहित। सर विजिट या मूवमेंट। तो हर्ष। सर मैं विजिट ही बोलता। नहीं, ऐसे कैसे बोल देगा, कुछ भी बोलता, विजिट बोलता, कैसे बोल देगा विजिट? विजिट इज अ डिफरेंट थिंग। हाँ यस। खुशी। सर जर्नी। जर्नी, बिल्कुल राइट। अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, कुछ भी बोल देंगे। सर हाँ, सर विजिट और ट्रैवल में क्या डिफरेंस होता है? विजिट अलग चीज होती है यार। मैं मंदिर जाता हूँ तो विजिट करने जाता हूँ, एग्जीबिशन जा रहा हूँ तो विजिट करने जा रहा हूँ, कोई मेला जा रहा हूँ तो विजिट करने जा रहा हूँ, दिल्ली जा रहा हूँ मैं तो ट्रैवलिंग कर रहा हूँ ना। ओके। विजिट इज अ डिफरेंट थिंग, ट्रैवलिंग इज अ डिफरेंट थिंग। व्हाट इज द एंटोनिम और सिनोनिम ऑफ बिटर? बिटर जरूरी नहीं है जो मैंने बोला है उसमें हो, आप अपना दिमाग लगाओ, इतने पढ़े लिखे हो आप। What is the synonym of, what is the opposite or antonym of bitter? Yes, Lakshmi. स्वीट। Sweet, बिल्कुल right. And what is the opposite of sad? Garvit. गर्वित, अब तो तेरा वाईफाई चालू हो गया, अब क्या है, नौटंकी है?
तेरे पापा से बात करूंगा बेटा, मैं ढंग से बात करनी पड़ेगी यार तेरे पापा से। सिमरन बेटा माइक तेरा कैमरा चालू कर ले बेटा, इतना टाइम खराब हो जाता है फालतू में बेटा, ज्यादा नहीं हो पाता फिर यार, अपना अलर्ट रहो थोड़ा सा। अनवी सर हैप्पी। वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। What is the synonym or similar of purchasing? Rakshit, सर बाइंग। buying, correct. सर ये तो चीटिंग है सर। क्यों? सर इतना आसान आसान पूछ रहे हो सर ये आप। तो सब किस्मत की बात है, ये तो सब किसकी नसीब में क्या आएगा ये अपन डिसाइड थोड़ी करते हैं, तो ऊपर वाला डिसाइड करता है, ठीक है ना? यस सर। हाँ बेटा। What is the meaning of flouts? गौरव, क्या सर? flouts. फ्लाउट। हाँ फ्लाउट बताया है मैंने सर, एक एक वर्ड का मीनिंग मैंने बताया जो भी डिफिकल्ट मीनिंग थे। फ्लाउट्स, अर्चित। Sir, to break any rule or this. यस, टू ब्रेक, टू वायलेट, है ना? ओके occupying, what is the similar of occupying? Anjali? अचीव। Uh-huh. Achieve is a different thing, occupy is a different thing. Rohit? सर कोई भी चीज लेना गरीब, Sorry? जैसे आई सर, जैसे आई ऑक्यूपाई हाउस यानी मेरा हाउस, मेरी चीज। नहीं मैं नहीं समझा कुछ भी ऐसे। सर एग्जैक्ट भी नहीं पता, बस सर भाव पता है मेरे को। नहीं भाव से थोड़ी काम चलता है। हाय, तू सोना लेने जाएगा तो एग्जैक्टली वहां पे खरीदेगा कि तो अंदाजे से खरीद लेगा कि ये भी दे दे? सर ये बात तो सर सब तब तो सर भाव ही तो गिनेंगे। सर अपन वोकेबलरी याद थोड़ी करनी चाहिए, हमें तो उसका भाव पता होना चाहिए सर। चुप रह, भाव भी नहीं बताया तूने, चुप। तू तो एग्जांपल दे दिया सेंटेंस का, मुझे क्या पता है एग्जांपल से मैं क्या समझूंगा? हाँ यस हर्ष। सर किसी भी चीज को ले लेना, ग्रहण कर लेना। हाँ, टू टेक समथिंग, टू टेक आएगा ना इसका। सर ग्रैब। तो टू टेक नहीं लगा सकते आप इसका? हाँ सर। फिर दिमाग कम सर लगा रहे हो। कैप्चर। सिंपल सिंपल से वर्ड्स पूछ रहा हूं मैं। ऐसे दिखते सर, नहीं है, बहुत पंखा दिख रहा है, पंखा चला दो, जिसका पंखा दिख रहा है पंखा चला ही दो तुम। पंखा ही दिखाना है तुम्हारे को तो। सर कैप्चर भी हो सकता है ना? कैप्चर थोड़ा सा अलग हो गया। कैप्चर का मतलब तो कब्जा करने वाली जैसी बात हो गई। समझ गए मेरी बात को आप? कैप्चर तो जैसे कब्जा कर लिया अपन। ऑक्यूपाई का मतलब ले लेना। समझ गए मेरी बात को आप? आपकी सीट नंबर मिला है आपको, आप उस सीट पे जाके बैठे हैं तो यू हैव ऑक्यूपाइड योर सीट। बट आपको सीट नंबर नहीं मिला और फिर जबरदस्ती किसी सीट पे आप बैठे हो तो यू हैव कैप्चर्ड द सीट। क्लियर हो गया बेटा? सर मतलब कोई ऐसी चीज को ले लेना जो आपकी नहीं है तो उसे कैप्चर कहेंगे। हाँ, जबरदस्ती ले लेना और ऐसे मतलब लाइक दैट कैप्चर करना। और सर छीनने की मीनिंग क्या होगी? मतलब वही है लगभग ग्रैब। छीनने का मतलब हाँ। यही हो सकता है, छीनना भी हो सकता है। आप इसीलिए सर। मैं आपको कह रहा हूँ ना कि आप जितना रीडिंग पे और लिसनिंग पे फोकस करोगे तो यू विल गेट द डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ डिफरेंट वर्ड्स। सर स्नैच भी तो होगा। स्नैच भी हो सकता है, वो एकदम छीन लेना, झपट के छीन लेना। सर कॉन्क्योर करना। कॉन्क्योर करना का मतलब टू विन, हैविंग विक्ट्री। यस सर। जीत लेना, जीत लेना। व्हाट इज द सिमिलर ऑफ परमिट? अब नंबर किसका चल रहा था, मेरे को इतना बातों में लगा लेते हो तुम एक दो।
Permit. सर लास्ट रोहित से कहा था। What is the meaning of? What is the similar meaning of permit? आदित्य. आदित्य सुन रहा है कि सो गया? आवाज ही नहीं आ रही उस तक. विपिन है ही नहीं यहाँ पे. कोमल. What is Yes, the sir. similar of? क्या बोला था मैंने? Permit. सर Permit बेटा. सर परमिशन. गिविंग परमिशन. और कोई प्रॉपर वर्ड बताओ इसका. एक परमिट. अगर सर एक बात और ध्यान रखो. सर जिस सुन लो पहले. जिस फॉर्म में मैं किसी वर्ड को पूछ रहा हूं और मैं अगर सिमिलर पूछ रहा हूं तो आपको सिमिलर बताना है. आपने मेरे को उसका मीनिंग बता दिया. सिमिलर वर्ड बताओ आप. सर हाँ, आवाज आ रही है? आ रही है. बहुत देर में आई. वैष्णवी. Order. नो. सुन लो छोटी छोटी बातें हैं. परमिट का मतलब ऑर्डर कैसे हो जाएगा? गौरव. नहीं है. सर परमिट का तो हाँ, बोल गौरव. सर 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 यार तेरा मोबाइल तो ढंग से सेट कर ले. मेरे को तो दिखना ही नहीं है. मेरे को शक्ल ही नहीं दिखती तेरी यार. 50 बार तो समझा दिया मैंने तेरे को यार. तुम्हारे को क्लास देनी पड़ेगी एक दिन अच्छे से. हाँ. परमिट परमिशन. है. परमिशन. परमिट में वर्ब बोल रहा हूँ तो आप वर्ब भी बताओगे मेरे को. परमिटिंग. चुप. परमिटेड. बोल रहा है. अंजलि. सर आई डोंट नो. यू डोंट नो. शर्म नहीं आती कहते हुए डेंट ने. कैमरा बंद करके बैठी रहेगी. फोकस करेगी नहीं. चीजों पे दिमाग लगाएगी नहीं. रक्षित. सर अलाउ. अलाउ. सर इतनी देर में मैं भी तो चिल्ला चिल्ला के बोल भाई रहा साहब हूँ. आपकी चिल्लाहट हमें सुनाई नहीं दी. बहुत देर से हम भी चिल्ला रहे थे. आदित्य भगवान का नाम लेते लेते 108 बार नाम ले लिया हमने. तब भी प्रभु प्रकट नहीं हुए. चलिए नेक्स्ट. रिलक्टेंटली. आई एम नॉट आस्किंग द सिमिलर. टेल मी द मीनिंग इन योर ओन वर्ड्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलक्टेंटली? रिलक्टेंटली. सुन लो अच्छे से. मैंने इसका मीनिंग लिखवा चुका हूं आपको. आपको केवल आप फ्रेज में या कैसे भी इसका समझाओ मुझे क्या होता है रिलक्टेंटली. सिमरन. सर बिना मन के. इंग्लिश में समझाओ. बना सकते हो आप आराम से. थोड़ा सा कोशिश करोगे तो. बिना मन के, बिना चाहत के, बिना इच्छा के. अब बना दे. सर विदाउट आवर विश. यार किसने कहा? मैं उसका सिमरन का नाम ले रखा है मैंने. सर आपने खुद बोल दिया उसका हिंदी तो मेरे को लगा कि ओपन हो गया. कमाल करते हो यार. जारी सर हाँ. सर आपने अपनी लैंग्वेज में कहा था एक शब्द बोलूं मैं. मैंने कहा ही नहीं एक शब्द में बोलो तुम. मैंने कहा मैं आई एम नॉट आस्किंग द सिमिलर. तो सर आपकी बात में बताऊं. एक्सप्लेन द मीनिंग इन योर ओन वर्ड्स. यस सर आई एम एक्सप्लेनिंग सर. आई एम नॉट आस्किंग यू टू एक्सप्लेन इट यार. That was the turn of Simran, though she is not. I am not able to see her. I don't know whether she is here or not. But please don't take your turn without your name. Okay. What is the opposite or antonym of vacant? Vacant. Lakshmi. फील्ड सर. Huh? फील्ड. Yeah. Vacant. सर लेटेड. लेटर्ड. ये क्या होता है? नहीं, वो लिटर्ड अलग चीज है.
वो लिटर्ड आएगा, केवल वो ऐसे फालतू की चीजों से भरा हुआ होगा तभी लिटर्ड आएगा। खुशी सर फुलफिल। मैं यहाँ पर वैकेंट बोल रहा हूँ, एडजेक्टिव है। फुलफिल कैसे आ जाएगा, वो तो वर्ब हो गई। गौरव यस सर, फुल। थोड़ा सा ठीक है, चल जाएगा, लेकिन वीक है यहाँ पर। अच्छा ओके, आई एम चेंज वैकेंट सीट। अब मैंने बोल दिया, अब इसका अपोजिट बताना है आप। बोलो गौरव। सर ऑक्यूपाइड सीट। यस, ऑक्यूपाइड सीट, वेरी गुड। सर फील्ड शीट। सर फील्ड वो पानी से भरा हुआ तो फील्ड आएगा उसके लिए। सीट को ऐसे फील्ड कैसे कर दोगे आप? सर हम आम भाषा में तो बोलते हैं। आम भाषा नहीं चलती है, हमें नंबर सर ओन्ड सीट। सर ओन्ड सीट, है OWNED सीट। ओन्ड सीट भी हो सकती है, हाँ बिल्कुल हो सकती है। सर बुकिंग सीट। बुकिंग सीट नहीं हो सकती। सर बुक्ड। बुक्ड भी यहाँ पर नहीं होगी, आप समझो इस बात को। बुक्ड नहीं हो, ऑक्यूपाइड इज अ परफेक्ट वर्ड फॉर इट। ओके, व्हाट इज द सिमिलर ऑफ ग्रैब? ग्रैब, ग्रैब, अनुज जल्दी करो। अनुज नहीं है यहाँ पर। अनवी, अनवी सर गंदगी। अरे मैं पूछ रहा हूँ इसका हिंदी में नहीं, इंग्लिश में बताओ आप। ग्रैब का गंदगी कैसे हो जाएगा? ग्रैब, ग्रैब हिंदी में बता दो। ग्रैब का मतलब गंदगी नहीं होगा बेटा। हाँ सर, घेर लेना। घेर लेना, वेरी गुड। क्या है? टू टेक भी हो सकता है, टू ऑक्यूपाई भी हो सकता है, सर कैप्चर। सर भी हो स्नैच। सकता है यहाँ पर, है ना? सर स्नैच। ना, स्नैच नहीं होएगा, वो तो छीन यस लेना सर। होता है ना? वो छीन लेना होता है। कोई सीट खाली पड़ी हुई है, आप पसरे पड़े हो, तो दैट इज नॉट स्नैचिंग। और आपने किसी के हाथ में कोई चीज है, किसी के गले में कोई चीज झपट के आपने उसको छीन लिया, दैट इज स्नैचिंग। समझ गए आप? चैन स्नैचर्स जो होते हैं ना, वो जो चैन स्नैचिंग करते हैं, वो बैठा के सामने थोड़ी करते हैं, झपट के छीन के ले जाते हैं वो तो एकदम से। दैट इज स्नैचिंग, दैट इज नॉट ग्रैबिंग। ठीक है ना? ग्रैबिंग का मतलब है कि आपके बगल में कोई खाली प्लॉट पड़ा हुआ है, आपने कब्जा कर लिया उसके ऊपर, दैट इज सर ग्रैबिंग। दादागिरी। दैट इज नॉट स्नैचिंग। स्नैचिंग क्या होता है कि आपके भाई के हाथ में एक चॉकलेट है, आपने खट से उसको छीन लिया, दैट इज स्नैचिंग। सर दैट सर इज आप भी ये नॉट काम करते थे क्या? स्नैचिंग सर। सर आप भी ये काम करते थे क्या? हाँ खूब, सारे भाई बहन करते हैं, उसमें क्या है? और सर मैंने ऐसे हम तो आज भी करते हैं। हमारे सामने कभी आप मत जाना, तुम काफी चॉकलेट लेके छीन छान लेंगे, हम स्नैचिंग कर लेंगे। सर मैंने पता है नहीं, चॉकलेट स्नैचिंग होगी। चलिए, हाँ, थैंक यू सर वेरी क्या मच बात कर फॉर रहे टुडेज हो? सेशन।